کبھی کبھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں ہارنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ٹائمز۔ سم ٹائمز مین کبھی کبھی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سم ٹائمز پلس کاما پلس وی ہیو ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز، یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ انگریزی زبان میں ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کبھی کبھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lie۔ Sometimes we have to lie۔ کبھی کبھی ہمیں ہارنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lose۔ Sometimes we have to lose۔ کبھی کبھی ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to come here۔ Sometimes we have to come here۔ کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to think about others۔ Sometimes we have to think about others۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کبھی کبھی ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے۔ مجھے چائے پینے کی عادت ہے، اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ تمہیں اخبار پڑھنے کی عادت ہے، اسے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی عادت ہے، یعنی ہر سینٹینس میں کی عادت ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in the habit of۔ in the habit of مین کی عادت ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس in the habit of پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھے چائے پینے کی عادت ہے۔ I am in the habit of taking tea۔ I am in the habit of taking tea۔ اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ He is in the habit of telling a lie۔ He is in the habit of telling a lie۔ تمہیں اخبار پڑھنے کی عادت ہے۔ You are in the habit of reading a newspaper۔ You are in the habit of reading a newspaper۔ اسے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ He is in the habit of joking۔ He is in the habit of joking۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے کام کرنے کی عادت ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم سو رہے ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں آئے ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے کیا پتا تھا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے کیا پتا تھا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں little did I know۔ little did I know مین مجھے کیا پتا تھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ little did I know پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم سو رہے ہو۔ Little did I know that you are sleeping۔ Little did I know that you are sleeping۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ Little did I know that he was telling a lie۔ Little did I know that he was telling a lie۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں آئے ہو۔ Little did I know that you have come here۔ Little did I know that you have come here۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ Little did I know that he is your brother۔
Later did I know that he is your brother. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے کیا پتا تھا کہ تم وہاں جا رہے ہو. تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے. اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے. تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی. مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز یا ہیڈ. ہیو یہ IVD یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. پلس ٹو پلس گیٹ پلس ادر ورڈز پلس ٹو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے. You have to get vegetables too. You have to get vegetables too. اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے. He has to get a new t-shirt too. تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی. You had to get my medicine too. You had to get my medicine too. کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی. کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی. کیا ضرورت تھی یہ کھانے کی. کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ضرورت تھی یعنی ہر سینٹینس میں کیا ضرورت تھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what was the need. What was the need mean کیا ضرورت تھی. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. What was the need plus to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی. What was the need to call him. What was the need to call him. کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی. What was the need to go there. What was the need to go there. کیا ضرورت تھی یہ کھانے کی. What was the need to eat this. What was the need to eat this. کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی. What was the need to tell him. What was the need to tell him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھنے کی. اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا. اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا. اس کے لیے یہاں مت آنا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے یعنی ہر سینٹینس میں اس کے لیے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں for this. For this mean اس کے لیے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس for this. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. I can do anything for this. I can do anything for this. اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا. I will go there for this. I will go there for this. اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا. He will definitely fight for this. He will definitely fight for this. اس کے لیے یہاں مت آنا. Don't come here for this. Don't come here for this. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کے لیے بحث مت کرنا. اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں. اتنا تو وہ نہیں کہہ سکتا. اتنا تو وہ چل سکتا ہے.
इतना तो वो सीख सकता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इतना तो, यानी हर सेंटेंस में इतना तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज मच। एज मच मीन इतना तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज मच। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू एज मच। आई नो यू एज मच। इतना तो वो नहीं कर सकता। ही कांट ईट एज मच। ही कांट ईट एज मच। इतना तो वो चल सकता है। ही कैन वॉक एज मच। ही कैन वॉक एज मच। इतना तो वो सीख सकता है। ही कैन लर्न एज मच। ही कैन लर्न एज मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना तो वो दौड़ सकता है। इतना तो वो दौड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो। लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा। सारा खेल किस्मत का है। सारा खेल पैसों का है। सारा खेल मेहनत का है। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारा खेल। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट लक। इट्स ऑल अबाउट लक। लक मीन किस्मत। इट्स ऑल अबाउट मीन सारा खेल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल पैसों का है। बिल्कुल कॉमन फकरा है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं ऐसे फकरे अपने डे टू डे लाइफ में। सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी। मनी मीन पैसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल मेहनत का है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। It's all about hard work. Next example for better understanding. सारा खेल लालच का है। It's all about greed. It's all about greed. सारा खेल कार का है। सारा खेल कार का है। It's all about car. It's all about car. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मोबाइल का है। सारा खेल मोबाइल का है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें एक्शन हो, यानी हम
किसी काम के करने या न करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल उसे बुलाने का है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब के अंदर हमें ING लगाना है। और वर्ब प्लस ING के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, यानी इस फिक्र में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। It's all about doing work every day. Doing ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल सीखने का है। It's all about learning. It's all about learning. Learning ये वर्ब प्लस ING है। लर्न के अंदर हमने ING ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल उसे बुलाने का है। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पढ़ाने का है। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। It's all about teaching. Keep this point in your mind that teach ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है ING, so it's all about teaching. One more example for better understanding, सारा खेल चापलूसी करने का है, सारा खेल चापलूसी करने का है। It's all about fluttering. It's all about fluttering. फ्लट मीन चापलूसी, और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने ING ऐड किया है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल वहाँ जाने का है। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है, सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है, मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ। वो मुहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं तंग आ जाना या उकता जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेक अप। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है सेक अप, और सेक अप के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस ING, जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और नाउन या वर्ब प्लस ING के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है। शी इज सिक ऑफ हर जॉब। शी इज सिक ऑफ हर जॉब कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया ये फ़क़रा अंग्रेजी ज़ुबान में इस स्ट्रक्चर की मदद से। शी ये सब्जेक्ट है विच मीन वो, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, और सिक ऑफ मीन तंग आ जाना या उकता जाना, जॉब मीन नौकरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स। आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स। आई ये सब्जेक्ट है विच मीन में, एम ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन हूँ, सिक ऑफ मीन तंग आ जाना, कंप्लेंट्स मीन शिकायत। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बीमारी से तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ हिज सिकनेस। ही इज सिक
आप his sickness। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मोहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। She is sick of the noise in the neighborhood। She is sick of the noise in the neighborhood। Neighborhood mean मोहल्ला। Next example for better understanding। वो उस लड़के से तंग आ चुकी है। She is sick of that boy। अगर वो नाराज हो गया तो, अगर बिजली चली गई तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रों में हम कह रहे हैं अगर तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी I दे या प्लूरल ना हो तो फिर हमें V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है और एस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। और अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ व्यू है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी I देम या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट और आखिर में अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब गेट के साथ इज ऐड हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर बिजली चली गई तो सो व्हाट इफ द पावर गोज आउट। व्हाट इफ द पावर गोज आउट। पावर ये सिंगुलर नाउन है, सो गो के साथ एस का इजाफा हुआ है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, अब ये नेगेटिव फैक्रा है। सो रूल के मुताबिक व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। डजंट ये ही के साथ यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसने इनकार किया तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो आ गई तो, अगर वो आ गई तो व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी कम्स। अगर तुम समझ न पाए तो, अगर तुम समझ न पाए तो व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर उसका फ़ोन बंद हो गया तो, अगर उसका फ़ोन बंद हो गया तो सो व्हाट इफ हिज फोन डाइज। व्हाट इफ हिज फोन डाइज। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर कल बारिश हुई तो, अगर कल बारिश हुई तो व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो।
What if it rains tomorrow? अगर हम रास्ता भूल गए तो what if we get lost? What if we get lost? अगर मैं खाना बना दूँ तो what if I cook food? What if I cook food? और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हमारी बस छूट गई तो, अगर हमारी बस छूट गई तो, और दूसरा फ़करा है अगर मैं ना आऊँ तो, अगर मैं ना आऊँ तो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अम्मी से कहो कि चाय बना दें, उससे कहो कि मुझसे बात करें, अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़करात में हम कह रहे हैं कहो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क। आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू। टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। अम्मी से कहो कि चाय बना दें। आस्क मॉम टू मेक टी। आस्क मॉम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें। आस्क हर टू टॉक टू मी। आस्क हर टू टॉक टू मी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले। उससे कहो कि मुझसे मिले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।